Hello students, we are continuing MCQ based on case scenario. This case scenario is based on financial instruments under Ind AS 32, 107 and 109, and our major topic is financial guarantee provided by holding company or parent company to its subsidiary company. So let us see data given in this scenario. So we are given on 1st April of current financial year, Fortunate Bank had provided a loan of rupees 25 lakh to Mohan Limited for 4 years at 10% per annum, and the loan has been guaranteed by Surya Limited, which is holding company for Mohan Limited. Interest payments are made at the end of each year, and the principal is repaid at the end of the loan term. If Surya Limited had not issued a guarantee, then Fortunate Bank would have charged Mohan Limited an interest rate of 14% per annum. So Surya Limited does not charge Mohan Limited for providing a guarantee. Further, if Mohan Limited defaults on the loan, Surya Limited does not expect to recover any amount from Mohan Limited. So next we are given on 31st March at the end of first financial year. So there is a 2% probability that Mohan Limited may default on the loan in the next 12 months. फिर आपको मेंशन किया है कि कितना चांस है कि जो कंपनी है वो डिफॉल्ट कर सकती है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, जिसे 2%. Similarly, we are given so on at the end of the second financial year on 31st March, there is a 4% probability that Mohan Limited may default on the loan in the next 12 months. And at the end of third financial year on 31st March, there is a 5% probability that Mohan Limited may default on the loan in the next 12 months. And then it is given at the end of the fourth financial year on 31st March, Mohan Limited makes default so in the repayment of a loan at the rate of 3% to Fortunate Bank. तो फाइनली अब डिफॉल्ट हो गया है आपका 3% एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर इन रीपेमेंट ऑफ लोन. So you are required to provide accounting treatment of financial guarantee as per Ind AS 109 in the books of Surya Limited, which is parent company, on initial recognition and in subsequent periods. फिर आपके पास डिफरेंट MCQ हैं. लाइक नंबर 1, वी हैव टू डिटरमिन द अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल गारंटी टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय Surya Limited on 1st April of a current financial year when guarantee provided to Mohan Limited. तो स्टार्ट करके क्वेश्चन देखो, आपको जैसा मेंशन किया है इसमें. तो दिस इज अवर 1st April of our current financial year, and that so one company Mohan Limited, so it has taken loan. Mohan Limited so has taken loan from Fortunate Bank. उसका अमाउंट आपको दिया है ₹25 lakhs, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दिस इज एट द रेट ऑफ 10% इंटरेस्ट पर एनम. बट दिस लोन हैज बीन गारंटीड, so this has been guaranteed by Surya Limited, and this Surya Limited is its holding company, which is called parent company. So if there has been no guarantee, so it means if there is no guarantee, so this type of guarantee called financial guarantee, then rate of interest would have been 14% per annum. तो एक तरीके से गारंटी के थ्रू मोहन लिमिटेड को 4% का बेनिफिट हो रहा है. एंड देन इट इज गिवन दैट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, और आपका जो लोन है ये है आपका 4 years. तो 4 years के एंड में आपने इसको रीपे करने हैं. फिर आपको मेंशन किया है बट ये कितना परसेंट चांस है कि आपका डिफॉल्ट हो सकता है. तो दिस इज गिवन 2%, 4% एंड 5%. तो दिस इज गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट. तो फर्स्ट ईयर के एंड में हमने प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट की है कि डिफॉल्ट होगा विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स में. दिस इज गिवन टू बी अवर 2%. फिर आपको फर्दर मेंशन किया है सेकंड ईयर में आपकी प्रोबेबिलिटी है 4%, एंड देन थर्ड ईयर में आपकी प्रोबेबिलिटी है 5%. फाइनली एक्चुअली एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर अब आपका एक्चुअल डिफॉल्ट हो रहा है 3%, यानी कि गिवन एक्चुअल डिफॉल्ट ये हो रहा है सिर्फ इन रीपेमेंट ऑफ लोन में. इन रीपेमेंट दिस इज इक्वल टू 3%.
तो फर्स्ट एमसीक्यू है, आपको डिटरमिन करना है अब जो पेरेंट कंपनी है उसने जो गारंटी दी है एक तरीके से उसके लिए लाइबिलिटी मानी जाएगी, तो उसकी कितनी वैल्यू आपने रिकॉग्नाइज करनी है उसकी बुक्स में। तो दिस इज एमसीक्यू नंबर 1, we have to recognize what is the value of financial guarantee liability, like I say FG, financial guarantee liability in books of Surya Limited। तो कितनी लाइबिलिटी आपने रिकॉग्नाइज करनी है बुक्स में, तो लाइक से तो उसका जो अमाउंट है, तो इसका बेसिक रूल ये है कि जो आपने एक्स्ट्रा इंटरेस्ट बन रहा है आपका विदाउट गारंटी, उन सब की आप कैलकुलेट कीजिए प्रेजेंट वैल्यू। सो दिस इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट विच इज विदाउट गारंटी। जो आपकी विदाउट गारंटी है, इतनी से कि गारंटी ना होगी तो आपको 4% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करना पड़ना था, उनकी आपको कैलकुलेट करनी है प्रेजेंट वैल्यू। एट कौन से रेट के बेस पे कैलकुलेट करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लेंगे विदाउट गारंटी वाला, एट इंटरेस्ट रेट विच इज विदाउट गारंटी। नाउ दिस इज इक्वल टू लेके सी वट विल बी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट। आपका जो अमाउंट ऑफ लोन है 25 लाख, तो उसके ऊपर आपका जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है दिस इज 4% एवरी ईयर। फिर इसकी आपको चाहिए प्रेजेंट वैल्यू, तो ये हर साल सेम ही रहेगा और 4 ईयर का आपका लोन है, तो इतनी इसको मल्टीप्लाई कीजिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एनुटी एट 14% फॉर 4 ईयर्स। तो आपका जो विदाउट गारंटी इंटरेस्ट रेट है 14% है, उसके बेस पर हम कैलकुलेट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू फॉर 4 ईयर। तो दिस फैक्टर इज 1 डिवाइडेड बाय 1.14 1 2 3 4, तो दिस इज 2.9137। इट मीन्स इसकी जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 25 लाख इंटू 4%, 1 लाख रुपीज इंटू दिस मच, तो दिस विल बी 2,91,370। तो ये अमाउंट आपने रिकॉग्नाइज करना है अपनी बुक्स में। तो ये सूर्य की बुक्स में हम रिकॉग्नाइज करेंगे फाइनेंशियल गारंटी की लायबिलिटी। तो अब देखो इसकी क्या एंट्री बन जाएगी, ये बन जाएगी आपकी इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी विच इज मोहन लिमिटेड टू फाइनेंशियल गारंटी लायबिलिटी अकाउंट। ये एंट्री आपने रिकॉग्नाइज करनी है। अमाउंट है अब आपका 291,370। नाउ यू कैन सी विच ऑप्शन इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। Next we have second MCQ, they are asking determine the amount of financial guarantee to be charged to P&L account by Surya Limited at end of first financial year on 31st March। तो आपने लिखना है कितना अमाउंट अपने P&L में चार्ज करना है, उसके लिए पहले कैलकुलेट करके उसकी बुक वैल्यू कितनी है। तो बेसिक रूल ये होता है हमारा कि अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल गारंटी विच इज अवर लाइबिलिटी टू बी चार्ज टू P&L दैट इज इक्वल टू, तो आपको देखना है कि आपकी बुक वैल्यू कितनी है गारंटी की। वट इज बुक वैल्यू, बुक वैल्यू होती है कैरिंग अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल गारंटी लाइबिलिटी, और आपकी कितना लॉस हो रहा है आपका प्रोबेबिलिटी जो है उसके बेस पर आप कैलकुलेट कीजिए एक्सपेक्टेड लॉस विच इज आल्सो कहा गया एक्सपेक्टेड लॉस अलाउंस। तो विच एवरेज हायर, जो भी इसमें से हायर होगा तो वो अमाउंट आपने जो है वो आपका जो अमाउंट है वो मानी जाएगी हायर इज कॉल्ड फेयर वैल्यू। दैट इज कॉल्ड फेयर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल गारंटी लाइबिलिटी FGL। तो इसमें उसको फिर आप कंपेयर कीजिए बुक वैल्यू से, तो इनमें से जो हायर है वो आपकी फेयर वैल्यू है। तो और जो डिफरेंस आएगा आपका, इट मीन्स डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू और ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस आपका कितना है ऑफ फाइनेंशियल गारंटी लाइबिलिटी, तो ये आपने चार्ज करना है P&L में, इट विल बी चार्ज टू P&L। तो पहले अब आपको शेड्यूल बनाना है फाइनेंशियल गारंटी का, जिसके बेस पर आपकी बुक वैल्यू डिटरमिन हो जाएगी। तो लेके सी फाइनेंशियल गारंटी लाइबिलिटी शेड्यूल, तो आप शो कीजिए 4 ईयर्स हैं आपके पास, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। फिर आपने फाइनेंशियल गारंटी लाइबिलिटी की अभी वैल्यू कैलकुलेट की है 291,370। तो बची जो फाइनेंशियल गारंटी लाइबिलिटी इनका बिगनिंग ऑफ ईयर दिस इज 291,370।
अब इसके ऊपर उसको आपने अमोर्टाइज करना है और इसका जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट था वो था 14%। तो इसके ऊपर आपकी इंटरेस्ट की कॉस्ट चार्ज हो जाएगी एट द रेट ऑफ 14%। 291,370 इंटू 14%, जिसे 40 तो 792। फिर आपने देखना है कि कंपनी ने कितना बेनिफिट जो था प्रोवाइड कर दिया है। बेनिफिट प्रोवाइडेड, बेनिफिट था जो आपने एक्स्ट्रा इंटरेस्ट सेव किया है सब्सिडरी कंपनी ने इनडायरेक्टली 4%, जिसकी वैल्यू थी 1 लाख। तो इट मीन्स ये गारंटी की लाइबिलिटी है प्लस इंटरेस्ट एक्रूड हो गया माइनस जो बेनिफिट है वो लेस कीजिए, ये आपका अमाउंट आ जाएगा एट एंड। ये आपकी बुक वैल्यू आ गई एट एंड ऑफ ईच ईयर। सो दिस मनी इज कमिंग 232, so 162। So again this is opening balance 232, 162। उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा इनटू 14%। तो दिस मनी गिवर 32503 एंड माइनस 1 लाख। तो दिस इज गिवर अमाउंट एट एंड 164,665। अगेन दिस इज ओपनिंग 164,665 on this interest is due, this is 14%, which is to 23,053 and minus 1 lakh benefit. So this is 87,718. So in the last year 87, so 718 बेनिफिट है आपका 1 लाख। अब वैल्यू हो जाएगी आपकी 0, इतनी जो डिफरेंस है वो आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट बन जाएगी। तो माइनस 1 लाख, तो जिसे 12,282। तो अब आपके पास देखो ये हमारे साल के एंड में बुक वैल्यूज आ गई हैं, ये ओपनिंग वैल्यूज थी। अब आपने लिखना है कितना अमाउंट आपने रखना है बुक वैल्यू में और बैलेंस जो है वो राइट ऑफ कर देंगे। उसका रूल है बुक वैल्यू है आपके पास, एक्सपेक्टेड लॉस अलाउंस कैलकुलेट करेंगे, फिर उसको आप कंपेयर कीजिए। तो चेक करके देखो एक और शेड्यूल बना रहे हैं ईयर वाइज। ईयर से आपके किसी ईयर फर्स्ट ईयर लेकिन है 0 ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड जो फोर्थ ईयर। what is the book value of a financial guarantee liability। तो अब देखिए 0 पीरियड में थी आपकी 291, यानी कि 232, 162, 164, 665, 87, 718, यानी कि 0। ये डिफरेंट ईयर्स में आपकी वैल्यूज आ गई हैं। अब आप देखिए एक्सपेक्टेड लॉस कितने हैं आपका। तो फर्स्ट ईयर में आपको मेंशन की कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट है 2%, ये आपने लेना है ऑफ 25 लाख, तो दिस में भी 50,000। देन इट इज एक्सपेक्टेड लॉस ये सेकंड ईयर में था आपका 4% ऑफ 25 लाख, 1 लाख। थर्ड ईयर में था आपका 5% ऑफ 25 लाख, जिस इज 125। फिर आपका एक्चुअल डिफॉल्ट हो रहा है 3%, इट मीन्स जिस इज ये बन जाएगा आपका 75,000। ये हमारा एक्चुअल है। तो देखें तो आपने वैल्यू रखनी है फाइनेंशियल गारंटी की विच एवर इज हायर, इट मीन्स व्हाट विल बी फाइनेंशियल गारंटी लाइबिलिटी एट एंड। इसमें से हायर है आपकी 232, 162 है, हायर इज 164, 665, देन हायर इज 125। ये तो लास्ट ईयर है, इसको कंसीडर नहीं करेंगे, तो उसके भी एंट्री देखते हैं कितना अमाउंट पी एंगल में चार्ज होगा। तो अब डिटर्मिन करते हैं 1 बाय 1 जो हमारे MCQ है कि फर्स्ट ईयर में कितना पी एंगल में चार्ज होगा, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड जो फोर्थ ईयर है। तो लेट अस सी दिस वन। नाउ लेट अस सी अवर सेकंड MCQ ईयर आस्किंग डिटर्मिन अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल गारंटी टू बी चार्ज टू पी एंगल बाय सूर्यनिमिटली एट एंड ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो ऐसे आपको थर्ड MCQ में पूछा है एट द एंड ऑफ सेकंड फाइनेंशियल ईयर, फोर्थ में पूछा है आपको एट द एंड ऑफ थर्ड फाइनेंशियल ईयर, फोर्थ और फिफ्थ MCQ है आपका अमाउंट टू बी चार्ज टू पी एंगल एट द एंड ऑफ फोर्थ फाइनेंशियल ईयर है। तो अब देखते हैं इसके एंट्रीज भी देखते हैं और उनके आंसर हैं। लेट अस सी व्हाट विल बी अवर एंट्री फॉर डिफरेंट ईयर्स और कितना अमाउंट आपका पी एंगल में चार्ज होगा। तो इट मीन्स तो आप देखिए जैसे फर्स्ट ईयर में है अब आपका
हमने देखा है कि जो फाइनेंशियल गारंटी की वैल्यू होनी चाहिए एट एंड में विच एवरेज हायर इट शुड बी दिस मच, बट ओपनिंग वैल्यू है आपकी 291,370। इसमें जो डिफरेंस है वो आपने P&L में चार कर देना है। उसकी एंट्री बन जाएगी फाइनेंशियल गारंटी लाइबिलिटी, ये आपने राइट ऑफ करनी है। अकाउंट डेबिटेड, लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट मीन्स ये अमाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा P&L में। तो लेके सी फर्स्ट ईयर में आपका बनना है डिफरेंस, दिस इज 291,370, यहाँ मेंशन कर रखे हैं 291,370 माइनस 232,162, ये आपका P&L में चार्ज हो जाएगा 291,370 माइनस 232,162, दिस इज 59, so 208, दिस इज फॉर फर्स्ट ईयर। देन दिस इज सेकंड ईयर। अब सेकंड ईयर में देखो आपकी ये बुक वैल्यू रह गई है एट एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 232,162। अब आपने वैल्यू रखनी है हायर 164, क्योंकि डिफरेंस है वो P&L में चार्ज हो जाएगा 232,162 माइनस 164,665, दिस अमाउंट is 232,162 minus 164,665, so this will be 67,497, so this will be charged to P&L in second year। थर्ड ईयर में देखिए अपने अमाउंट रखना है वो हायर है 125, तो बुक आपकी ओपनिंग वैल्यू थी 164, तो इसमें थर्ड ईयर में आपका अमाउंट चार्ज होगा 164,665 माइनस 125, बैलेंस आपका P&L में चार्ज हो जाएगा। तो जिसे ये 64,665 माइनस 25,000, जिसे 39, ठीक है 665। अब देखते हैं कि कौन कौन सी ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं। तो फर्स्ट ईयर में जो आपने P&L में चार्ज करना है, सो हेयर अवर आंसर इज करेक्ट ऑप्शन इज अवर डी, दिस इज ऑप्शन डी। अमाउंट टू बी चार्ज टू P&L इज 59,208। फिर आपको देखो थर्ड MCQ में था कि सेकंड ईयर में कितना P&L में चार्ज करेंगे, तो उसका जो ऑप्शन है दिस इज अवर ऑप्शन नंबर सी। तो करेक्ट अमाउंट है 67,497 जो आपने P&L में चार्ज करना है। देन इट इज गिवन अवर फोर्थ MCQ कि थर्ड ईयर के एंड में आपने कितना P&L में ट्रांसफ़र करना है, तो दिस इज गिवन ऑप्शन बी विच इज 39,665, दिस इज अवर ऑप्शन नंबर बी। उस केस में P&L में क्रेडिट हो रहे हैं अमाउंट आपकी, ये इनकम बन रही है। फिर आपका है लास्ट MCQ है नंबर 5, अमाउंट टू बी चार्ज और टू बी क्रेडिटेड टू P&L इन फोर्थ ईयर एट द टाइम ऑफ अवर सेटलमेंट ऑफ लोन। अब देखिए आपका एक्चुअल डिफॉल्ट हो रहा है इसमें 3%, तो देखते हैं। तो अब आपकी ईयर फोर्थ में देखो क्या एंट्री होगी बुक्स में। अब आपकी बुक्स में जो बैलेंस है फाइनेंशियल गारंटी लाइबिलिटी का वो 125 रह गया है, तो आपने एंट्री कर देनी है फाइनेंशियल गारंटी लाइबिलिटी अकाउंट डेबिटेड, जिसे 125 होगी। पर अब आपका एक्चुअल डिफ़ॉल्ट हो गया है, जिस केस में 3% डिफ़ॉल्ट है तो उसका अमाउंट है 75। इट मीन्स ये गारंटी का अमाउंट जो है ये अब होल्डिंग कंपनी को पे करना पड़ेगा टू बैंक, तो ये आप पेमेंट कर लीजिए टू बैंक, जिसे कि फॉर डिफ़ॉल्ट बाय अवर सब्सिडरी कंपनी 75,000, और जो बैलेंस रह जाएगा वो आपका P&L में क्रेडिट हो जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस तरीके से जो फाइनेंशियल गारंटी आपने प्रोवाइड की थी वो आपकी बुक से एलिमिनेट हो जाएगी फोर्थ ईयर के एंड में। तो आंसर है आपका अमाउंट आपने चार्ज करना है P&L में 50,000 इन फोर्थ ईयर। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, यू कैन सी आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ये एक अच्छा क्वेश्चन है फाइनेंशियल गारंटी के ऊपर, इसको आप समझ लीजिए ध्यान से। So in this lecture we discussed case scenario on financial guarantee under Ind AS 32, 107 and 109। फर्दर टॉपिक्स कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।